Good afternoon again. So welcome to today's session. Thank you so much for joining in. We have a very special guest with us today, Pankaj Saraogi sir, and thank you for joining in. Thank you for accepting our request on a very short notice. So I will actually start with a brief introduction about myself, although a lot of people know me already, but there are some new joinees also today. So I'll start with my introduction and then I will introduce Pankaj Saraogi ji as well, who is our special guest for today. So I qualified in 2005 and I started my career with one of the big four consulting firms. And then subsequently, I also worked in industry for 3 years. And then I started my own practice 14 years back. So I started with an audit and slowly kept on adding the advisory piece like merger acquisition, valuations, due diligence, fraud investigations, and IPO advisories as well. So that's a brief background. And about our special guest for today, CA Pankaj Saraogi sir. So welcome for today's session. Uh, I have known him for more than 10 years now, and he's an excellent person, a hardcore academician. I'm an SRCC graduate, scored 10th rank All India in CA final, and then he also did LLB, and he's into his own practice. Initially, he also worked with PwC, and now he's running his own litigation practice in the direct taxation. And whenever I find any sort of queries, I always reach out to him, and he's like accessible all the time. And he doesn't need to reach out to any of the books. He's instantly giving all sort of answer to all the queries. So welcome to today's session, and I welcome you all, especially Amarjit Chopra sir. Thank you so much for joining us today, and ML Vij sir also. Thank you so much for taking out time, and a lot of other people who are on board with us. So over to you, Pankaj sir. थैंक यू जतिन, थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहले मैं नमस्कार करूंगा, प्रणाम करूंगा अमरजीत चोपड़ा सर को, मेरे बहुत ही सीनियर, और जो कहते हैं कि पापा से भी सीनियर है मेरे माय फादर इज आल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ 1985, तो उनको मेरा प्रणाम। और सभी जितने प्रोफेशनल कलीग्स हैं, बड़ों को प्रणाम, और जो बराबर के उन सबको नमस्कार। रिगार्डिंग द क्वेरीज इफ आई टॉक अबाउट, तो देखिए कल जो बजट आया उसके बाद भी बहुत सारे सवाल हैं, और एक सवाल तो ऐसा भी आया जिसके लिए निर्मला मैम को हाथों हाथ क्लैरिफिकेशन इशू करना पड़ा थ्रू ट्विटर और वट एवर द सोशल मीडिया चैनल्स, कि वो सब आपने भी देखा होगा कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में वी ऑल नो दैट इंडेक्सेशन बेनिफिट हैज बीन दैट गोन ऑफ, कल जा चुका है। ठीक है, अभी कहने के लिए लॉ में नहीं आया, अभी फाइनेंस बिल पास नहीं हुआ है, बट स्टिल जब भी फाइनेंस बिल इफेक्टिव होगा, दैट इज इफेक्टिव फ्रॉम 23rd of July, वी टॉक अबाउट इन दैट पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव आई एम टॉकिंग। तो जब इंडेक्सेशन बेनिफिट एट्स गॉन, तो सवाल ये आया, क्या जो 1 अप्रैल 2001 द फेयर मार्केट वैल्यू ऑप्शन, अगर आपने कोई पर्टिकुलर कैपिटल एसेट एक्वायर किया था 1 अप्रैल 2001 से पहले, तो उस पर्टिकुलर केस में ग्रैंडफादरिंग बेनिफिट दिया हुआ है कि दैट यू कैन ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू एज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्या वो बेनिफिट अवेलेबल रहेगा या नहीं रहेगा? तो आई थिंक दैट वाज क्लियर इन द लॉ इटसेल्फ। अगर हम बेयर लॉ पढ़ते हैं तो उससे क्लियर था कि वो ऑप्शन विड्रॉ नहीं करा है। दैट इज माय ऑप्शन, and that has been clarified by the you can say the income tax department also or the ministry also, कि नहीं, that option is there। अगर आपका मार्केट वैल्यू ज्यादा है तो यू कैन ऑप्ट द मार्केट वैल्यू एज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, but in any case post 2001 that indexation benefits are not allowed, so that is the one clarification issued। let's see, अभी इस पे फाइनेंस बिल पे डिस्कशंस होंगे, वी पर्टिकुलर लॉबी ऑफ द प्रोफेशनल्स, द इंडस्ट्रियलिस्ट, कहीं ना कहीं फीडबैक देंगे हम मिनिस्ट्रीज को, तो उसके थ्रू भी देखिए बहुत सारे चेंजेस आते हैं, फाइनेंस बिल से फाइनेंस एक्ट की स्टेज तक जाते हैं, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट गुड चेंजेस आते हैं। एक जो चेंज एक्सपेक्ट किया जा रहा है उसको मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर रहा हूं, और उसमें बहुत सारे लोग प्लान कर रहे हैं टू सबमिट अ फीडबैक टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री, एंड दैट इज रिगार्डिंग बायबैक ऑफ शेयर्स। तो उस पर एक थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, क्योंकि देखिए कॉर्पोरेट्स के लिए बहुत मैटर करता था ये बायबैक का एस्पेक्ट, और इसका ऑल टुगेदर उन्होंने टैक्सेशन मैकेनिज्म चेंज कर दिया है, तो ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द टैक्स लायबिलिटीज इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर्स और द कंपनी। तो उस पर हम डिस्कशन करेंगे कि वहां पर एक कुछ थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कुछ अनजस्ट हुआ है, विच इज नॉट प्रॉपर, तो वो एक फीडबैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फाइनेंस एक्ट जब तक पास होगा तो शायद वो चीज बेटर कर दी जाएगी, तो उसको ड्यूरिंग द कोर्स हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लेट मी शेयर द पीपीटी और उसको हम डिस्कस करते हैं। आई होप दिस इज विजिबल टू ऑल। जतिन, इज दैट विजिबल? Yeah, it's okay. Okay, thank you. Friends, we all know that slab rates have been changed a little bit, but only for the persons who are opting for the new regime.
तो वहां पे अगर आप बेनिफिट देखते हैं तो दैट इज समथिंग लाइक 10,000 का बेनिफिट दिया है बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ द स्लैब रेट्स, दैट इज अपर लिमिट ऑफ द बेनिफिट। प्लस कुछ सैलरी के केस में बेनिफिट दिया, द स्टैंडर्ड डिडक्शन हैव बीन इंक्रीज्ड। वो ऑलरेडी देखिए हमारे पास एक सोशल गुरु है, उसके थ्रू हम ऑलरेडी हमें पता चल चुका है। फैमिली पेंशन के केस में डिडक्शन 15,000 से बढ़ा के 25,000। नाउ दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट विच इज प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयर एज वेल एज एम्प्लॉय। I think that is a good point which is provided by the finance ministry. Friends, regarding the contribution to the National Pension System Trust, NPS. So earlier there used to be a provision that if the employer is making any contribution in the name of the employee, that employer is eligible for deduction as a business expense, but to the maximum of 10% of the salary. एम्प्लॉयर को कितना डिडक्शन अलाउड था? मैक्सिमम 10% ऑफ द सैलरी ऑफ दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय। अगर कंट्रीब्यूशन उससे ज्यादा है तो भी डिडक्शन कितना मिलेगा? 10%। नाउ इन द केस ऑफ द एम्प्लॉय इफ वी टॉक अबाउट, एम्प्लॉय के केस में फुल कंट्रीब्यूशन इज ट्रीटेड एज इनकम अंडर हेड सैलरीज, वेदर इट इज 10%, 12%, 15% ऑफ सैलरी और व्हाटएवर। बट अगेन ही इज एलिजिबल फॉर गेटिंग बेनिफिट ऑफ डिडक्शन इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 80 CCD2 विच सेज कि जितना वहां पर कंट्रीब्यूट हुआ है उसका डिडक्शन मिलेगा, बट मैक्सिमम कितना? अगेन 10% ऑफ सैलरी। तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि एम्प्लॉयर इज मेकिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ 15%, बट डिडक्शन कितनी मिल रही है? 10% ऑफ सैलरी, दैट बैलेंस 5% इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय। नाउ दिस पर्टिकुलर लिमिट हैज बीन इंक्रीज टू 14%। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट के केस में ऑलरेडी 14% था, तो इन्होंने कहा नॉन गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयर्स हैं उसके केस में उसको इक्विवेलेंट कर दिया। नाउ डिडक्शन हैज बीन इंक्रीज टू 14% ऑफ सैलरी फॉर बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। बट देयर इज अ कैच, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आप एम्प्लॉयर हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको 14% की डिडक्शन मिलेगी, इररेस्पेक्टिव ऑफ द एस्पेक्ट कि एम्प्लॉय न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करता है या ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करता है। दैट मीन्स फॉर एम्प्लॉयर देयर इज नो कंडीशन for that claiming increased limit of deduction under section 36 of the act if we talk about. तो अगर आप एम्प्लॉय के एनपीएस में पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं एज एम्प्लॉयर, तो आपको अब डिडक्शन कितनी मिलेगी? 14% ऑफ सैलरी। बट इन केस ऑफ एम्प्लॉय इफ आई टॉक अबाउट, वहां पर एक कंडीशन है कि अगर एम्प्लॉय न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करेगा तो ही कैन क्लेम डिडक्शन ऑफ 14% ऑफ सैलरी, दैट इज अ मैक्सिमम लिमिट। बट अगर वो ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करता है तो उस पर्टिकुलर केस में 10% का ही बेनिफिट मिलेगा। तो इवन इफ दैट एम्प्लॉय इज फॉलोइंग ओल्ड टैक्स रिजीम, एम्प्लॉयर इज एलिजिबल फॉर 14% डिडक्शन, एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर फुल असेसमेंट ईयर। तो इट इज नॉट लाइक कि from 23rd of July it is going to be applicable or 1st of September। तो पूरा साल का क्यूमुलेटिव चेक किया जाएगा कि सैलरी के केस में आपने जो कंट्रीब्यूट किया एज एम्प्लॉयर, दैट इज अप टू 14% और मोर देन 14%। चलते हैं आगे। दैट इज अ मेजर चेंज, इज गोइंग टू इंपैक्ट नॉट ओनली द इंडिविजुअल्स बट इफ आई टॉक अबाउट द ऑल पर्संस। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स इफ आई टॉक अबाउट, द टोटली यू कैन से एक अपने आप में रिवैम्प हो गया लॉ, और बहुत अपने आप में सिंप्लीफाई किया है। मुझे लगता है कि जो 7-8 साल पहले इनकम टैक्स में लॉ था वहीं पहुंच गए। उस समय 2 ही पीरियड ऑफ होल्डिंग हुआ करते थे, आइदर 12 मंथ्स और 36 मंथ्स। और धीरे धीरे आपको सबको पता है कि बीच में 24 मंथ्स, ये कंडीशंस वो कंडीशंस। नाउ इट हैज बीन सिंप्लीफाइड अगेन। नाउ देयर आर ओनली 2 लिमिट्स, दैट इज 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स। अगर लिस्टेड सिक्योरिटीज हैं इंक्लूडिंग यूनिट्स, लिस्टेड होनी चाहिए। दैट पीरियड ऑफ होल्डिंग नीड टू बी चेक 1 ईयर ओनली। आफ्टर 1 ईयर इट विल बी लॉन्ग टर्म। बाकी सारे एसेट्स के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म की परिभाषा क्या है? दैट यू आर होल्डिंग दैट पर्टिकुलर एसेट फॉर मोर देन 2 years. And friends, this amendment is applicable from 23rd of July 2024. Please remember that if you have made the transaction on 22nd of July or before that, the old provisions will apply for all aspects। जो इंडेक्सेशन का इशू है, टैक्स रेट का इशू है, सारी चीजें कौन सी लगेंगी? द ओल्ड प्रोविजंस एंड नॉट द न्यू वन। बट इफ यू आर मेकिंग ट्रांसफर ऑन 23rd of July और लेटर ऑन, द न्यू प्रोविजंस विल अप्लाई। तो इसमें एक ही काम होने वाला है। अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म देखा और उसमें शेड्यूल कैपिटल गेन्स देखा हो, तो दैट रन्स इनटू अप्रोक्सीमेट 3 or 4 पेजेस, एक नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्मेट के हिसाब से। नाउ फॉर असेसमेंट ईयर 25-26, दिस फाइनेंशियल ईयर इट इज गोइंग टू बी ऑफ डबल साइज, क्योंकि वहां पे उनको पर्टिकुलर कॉलम देने पड़ेंगे। आपने ये ट्रांजैक्शन करी तो 23 जुलाई से पहले करी या 23 जुलाई या उसके बाद करी, दे हैव टू प्रोवाइड द कॉलम्स, तभी कंप्यूटर वो टैक्स कैलकुलेट कर पाएगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है।
तो प्लीज रिमेंबर आपकी डेट ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है, उसी के हिसाब से एवरीथिंग विल बी देयर. इफ यू हैव मेड द ट्रांजेक्शन अप टू 22nd of July, the old provisions will apply. Accordingly, tax rates will be there, indexation will be there. And to discuss capital gains further, I'm introducing one provision in between. एक मैटर था disputed whether a gift can be from a person who is not natural person, like company, like firm, like LLP, or only natural persons can give the gift. The thing is that in income tax law, if I talk about, it is written that transfer by way of gift is not treated as transfer. That means अगर गिफ्ट के रूप में आप कोई असेट ट्रांसफर करते हैं तो उस पे कैपिटल गेन्स पे टैक्स नहीं लगेगा. Now, what used to happen, the firms or LLPs or companies are gifting the assets to someone else and saying that it is a gift. That's why no transfer tax will be levied, no capital gains tax to be levied. अब इनकम टैक्स लॉ में वर्ड क्या लिखा होता, सिर्फ गिफ्ट लिखा हुआ था, वहां पे गिफ्ट वर्ड को डिफाइन नहीं किया हुआ था. एंड नॉर्मल पैरेंट्स वी ऑल नो दैट गिफ्ट कैन बी आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन ओनली, एक्सेप्ट इन वन केस. Obviously, in the very beginning, we talk about जब आप स्पाउस को गिफ्ट देते हैं तो that may not be because of natural love and affection, but that is deemed to be कि है वहां पर. तो that's an exception कि वहां पे बिना natural love and affection के तो भी आप गिफ्ट दे रहे हो, and it is not taxable either for both the persons, not for the both the spouses. तो अब इन्होंने क्लेरिफाई करा, अमेंडमेंट करा कि अगर इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा और कोई पर्सन अगर कोई असेट ट्रांसफर करता है विदाउट कंसिडरेशन तो उसे फिर भी ट्रांसफर माना जाएगा, कैपिटल गेन्स कंप्यूट किए जाएंगे. एंड द थिंग व्हिच आई मार्क्ड इन रेड that it is applicable with effect from assessment year 25-26. That means even if the company or firm or LLP has made the gift between the period of 1st April 2024 to 22nd of July 2024, still it is chargeable to tax. तो अगर ऑलरेडी गिफ्ट हो चुका है तो वो ट्रांजैक्शन टैक्सेबल है. अब उस केस में क्या किया जाए, दैट यू हैव टू थिंक ऑफ. वो ऑब्वियस सी बात है कि प्रोफेशनल्स के पास जाना पड़ेगा, कोई ना कोई तरीका देखना पड़ेगा कि क्या लेजिटिमेट बेसिस हो सकते हैं जहां पर उस ट्रांजैक्शन पे टैक्स नहीं लगे. पंकज, हाँ जी सर. तो ये लोग कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी लेके ट्रांसफर करते थे, हाँ जी, वो तो खत्म हो गई फिर. हाँ सर, वो भी उस केस के अंदर भी अब टैक्स अराइज होगा. टैक्स आएगा उसमें सर उसके पहले तो यही हो रहा था कि कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी ली, फर्म पे करते रही, बाद में उसको चली गई, तो नो दिस विल गो अवे. सर उसके अंदर एक अभी भी जो मैं एज ए प्रोफेशनल अगर मैं सोचूं तो एक लीगल एस्पेक्ट ये आएगा कि कैपिटल गेन्स हेड में टैक्सेबिलिटी अराइज तब होती है व्हेन समथिंग इज कैपिटल एसेट. तो एक कंपनी ने अगर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी ली एंड कंपनी इज पेइंग प्रीमियम फॉर लास्ट 15 इयर्स एंड आफ्टर दैट इट इज असाइनिंग दैट पॉलिसी टू द एम्प्लॉय कि जी आप बैलेंस ईयर्स का प्रीमियम आप पे करो, आप टैक्स पे कर दे, प्रीमियम पे कर देना, तो वेदर इट विल बी अ कैपिटल एसेट फॉर द फ्रॉम द पर्सपेक्टिव तो है ही ना. द राइट टू रिसीव इनकम, द अमाउंट इज देयर, द राइट टू रिसीव द देयर, तो कैपिटल एसेट तो है ही. हाँ तो सर वो है आफ्टर देयर इज अ सरेंडर वैल्यू टू एवरी पॉलिसी, दैट सरेंडर वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट. बिल्कुल सर. तो सर उस केस में टैक्सेबिलिटी आएगी बिल्कुल, क्योंकि पॉइंट यही आएगा कि अगला उसकी अब वैल्यू कैसे कैलकुलेट हो, व्हाट विल बी द ट्रांसफर प्राइस व्हेन इट इज ट्रांसफर विदाउट एनी मनी कंसीडरेशन. वो तो मेरे हिसाब से उस वक्त की जो सरेंडर वैल्यू होगी बिल्कुल वही सर, बिल्कुल सर. उस केस में मैं मानता हूं कि देखिए इनकम टैक्स एक्ट में अगर देखूं तो कैपिटल गेन्स के अंदर 3 ही सेक्शन है जो कहीं ना कहीं डीमिंग प्रोविजंस की बात करते हैं कि ट्रांसफर प्राइस कितना माना जाएगा. इमोल प्रॉपर्टी के केस में कहते हैं सर्कल रेट व्हिच इज द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू. शेयर्स के केस में फेयर मार्केट वैल्यू टू बी कंप्यूटेड इन टर्म्स ऑफ रूल 11 यूए. और एक हमारे पास सेक्शन 50D है, वो कहता है कि अगर आपने कोई असेट ट्रांसफर किया और उसका कंसिडरेशन अगर असर्टेनेबल नहीं है या डिटर्मिनेबल नहीं है तो उस पर्टिकुलर केस में उसकी मार्केट वैल्यू को ही ट्रांसफर प्राइस माना जाएगा. तो आई थिंक मैक्सिमम असेट्स के केस में क्या होगा, 50D अप्लाई होगा. इनडायरेक्टली देखे तो मार्केट वैल्यू क्या बन जाएगी, ट्रांसफर प्राइस. तो देयर विल बी टैक्स विदाउट रिसीट ऑफ एनी मनी. तो आई थिंक डिपार्टमेंट का पर्पस ये नहीं है कि वहां पे टैक्स चाहिए, डिपार्टमेंट का पर्पस है इस तरीके की प्रैक्टिसेस को कर्ब किया जाए. Actually, that is the only purpose. Yes, if you look at most of the provisions which have come in, this is only to curb. Of course, you said one thing to begin with regard to the capital gains. The government didn't want to intervene in the capital market. Otherwise, the government has intervened because the markets have become too heated. They have actually intervened indirectly by raising the capital gain. F&O के ऊपर भी कर दिया आपने, 0.06 से उठा के 0.1 कर दिया STT भी. This is one way to actually cool off the overheated markets.
बिल्कुल सर, और ये बिल्कुल सर। ठीक है। अब जिसको ये लगता है भाई करोड़ों का गेन हो रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में, तो डेफिनेटली कूल ऑफ होगी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। 15% से 20% का टैक्स बहुत होता है एक्चुअली। That means a lot, sir. 20% is too high. अगर सरचार्ज a से lot. जोड़े तो is very handsome amount. Now there will be more of wealth creation. आप लेंगे shares, you will हम्म। retain it for a longer period so that your wealth can be created rather than earning the income on a short term basis. मेरा अपना मानना ये। सर यही होना चाहिए आइडियली, देखिए कहीं ना कहीं। अदरवाइज सर शॉर्ट टर्म पे टैक्स अगर मैं देखूं सरचार्ज सेस इंक्लूड करके इट बिकम्स 23.92% एंड दैट इज क्वाइट हाई टैक्स इफ आई टॉक अबाउट फ्रेंड्स Sorry to इसके interrupt अंदर। you. हाँ जी। Sorry to interrupt you. मैंने कहा आपको इंटरप्ट किया उसके लिए सॉरी। नहीं अरे सर, सर No, no, प्लीज sir. सर, Thank you so much. इट्स अ वैल्यूएबल इनपुट सर। आप आए सर प्लेटफॉर्म पे, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेजर फॉर अस। और सर आपके इनपुट्स मिल रहे हैं तो मैं कहता हूं कि इस पर्टिकुलर वेबिनार में जो कहते हैं ना, इसकी वैल्यू 10 टाइम्स बढ़ गई मिनिमम। और फ्रेंड्स इसके अंदर देखिए जो चेंज किया है दैट इज इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांसफर। रिसिपेंट के केस में अभी भी सेक्शंस में कोई भी चेंज नहीं है। सेक्शन 56 टू 10 इज रिगार्ड द रिसिपेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर गिफ्ट, वहां पर कोई भी चेंज नहीं है। तो टैक्सेबिलिटी नॉन टैक्सेबिलिटी वो प्रोविजंस एज इट इज है, वहां पे ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन इंपोज नहीं करी है, क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट कहती है अगर कंपनी को कोई गिफ्ट मिल रहा है तो ऑब्वियसली देयर कैन नॉट बी एनी रिलेटिव फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कंपनी, तो जो भी मिलेगा उसमें मार्केट वैल्यू पे कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा। इंडेक्सेशन again applicable from 23rd of July, no indexation in case of long term capital assets. Tax rate for all type of long term capital assets whether becoming long term after 1 year or 2 years is same 12.5%. Plus surcharge cap is there of 15% in any case even if income exceeds 2 CR or 5 CR, और plus 4% cess. तो कुछ असेट्स के केस में देखें तो टैक्स रेट कम हो गया, कुछ असेट्स के केस में टैक्स रेट बढ़ गया। उसमें स्पेसिफिकली देखूं तो जो आपके लॉन्ग टर्म इक्विटी के कैपिटल गेन्स थे, on that tax rates have been increased from 10% to 12.5%. Unlisted shares held by the non-resident, वहां पर 10% का फ्लैट रेट था, that has been increased to 12.5%. But still one provision is still there, that has also been that removed, कि अगर आपके पास लिस्टेड सिक्योरिटीज है, यू हैव ऑप्शन टू पे टैक्स आइदर द नॉर्मल रेट और द 10% विच एवर इज लोअर एज पर योर एसएससी, वो प्रोविजन में हटा दिया है। तो लॉन्ग टर्म पे इन एनी केस अब कितना होगा, 12.5%। नाउ ओनली वन असेट इज देयर इन विच स्टिल पीरियड ऑफ होल्डिंग इज रिक्वायर्ड इज 36 मंथ्स। आई थिंक मेरा मानना है कि शायद वो मिस हो गया, मुझे नहीं लगता नोइंगली वो चीज उन्होंने कंटिन्यू करी होगी, एंड दैट इज इन रेस्पेक्ट ऑफ स्लम सेल। अगर आप पूरा का पूरा रनिंग बिजनेस अगर बेच रहे हैं तो वहां पे पीरियड ऑफ होल्डिंग सेक्शन 50B में लिखी हुई है, वहां पे पीरियड ऑफ होल्डिंग शॉर्ट टर्म जहां पे डिफाइन है दैट इज सेक्शन 2 क्लॉज 42 है, वहां नहीं लिखी हुई। और वहां पर अभी भी ऐसी कोई अमेंडमेंट प्रपोज नहीं है कि पीरियड ऑफ होल्डिंग फॉर लॉन्ग टर्म इज रिक्वायर्ड 36 मंथ्स। I think that's intentional, not missed out from a business perspective. मे बी पॉसिबल कि भी स्लम सेल है तो आप भी शॉर्ट टर्म है तो नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स पे कीजिए, और अगर लॉन्ग टर्म है तो अगेन दैट इज 12.5%। कई चीजें हैं जो इंटेंशनल छोड़ी हैं। ओके, एक जो आप 54 में बेनिफिट लेते हैं, यू इन्वेस्ट द कंसिडरेशन, हाँ जी, and if you sell it off in the period of 36 months, then it gets back taxed again. हाँ अभी जी, वहां पे उन्होंने 36 महीने रखा, वहां 24 महीने नहीं किया। हाँ वहां नहीं किया सर, वहां तो नहीं दे किया। वांटेड कि आप जो भी खरीदे हैं तो उसको आप 36 महीने रिटेन करें, तो कुछ चीजें इंटेंशनल है। बिल्कुल है सर, ये रखा है उन्होंने, तो मे बी फॉर द स्लम सेल ऑल्सो। तो मुझे तो बस एक छोटा सा एप्रीहेंशन है कि अगर स्लम सेल में अगर टैक्स रेट वहां पर भी लॉन्ग टर्म पे 12.5, देखिए टैक्स रेट की बात करूं तो सेक्शन 112 कॉमन है फॉर ऑल टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स। तो स्लम सेल के केस में भी अगर लॉन्ग टर्म गेन्स आएंगे तो टैक्स विल बी 12.5%। तो वहां पर अभी मार्केट वैल्यूएशन के कोई उन्होंने प्रोविजंस नहीं निकाले हुए कि सेल कंसीडरेशन कैसे कंप्यूट होगा, क्या होगा, वो थोड़ा सा चैलेंज बाकी है। तो कहीं ना कहीं उसके थ्रू मैनिपुलेशन स्टार्ट ना हो जाए, दैट इज पॉसिबल। नाउ द इंपैक्ट फ्रेंड्स, इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा स्पेसिफिकली इन केस ऑफ दैट इमोल प्रॉपर्टीज, जो ये इंडेक्सेशन बेनिफिट उन्होंने हटा दिया। नाउ वी ऑल नो देयर इज अ प्रोविजन सेक्शन 54, सुना भी होगा, कि अगर रेजिडेंशियल हाउस ट्रांसफर किया है उसके अगेंस्ट हम रेजिडेंशियल हाउस ही अगर एक्वायर करते हैं तो कैपिटल गेन्स एग्जेम्प्ट हो जाते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द न्यू रेजिडेंशियल हाउस। अब आप सोचिए आपके कैपिटल गेन्स कंपैरेटिवली बढ़ गए व्हेन देयर इज नो इंडेक्सेशन, देयर इज इंक्रीज इन कैपिटल गेन्स। भी पहले मैंने एक प्रॉपर्टी बेचा 10 करोड़ रुपए में, उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है 3 करोड़ रुपए, पता चला कि आफ्टर इंडेक्सेशन वो बन रही है 8 करोड़ रुपए, तो मेरे कैपिटल गेन्स आए 2 करोड़ रुपए। मुझे नई रेजिडेंशियल हाउस एक 2 करोड़ का लेना है, दैट इज मोर देन एनफ। ज्यादा का लेता हूं इट्स माय चॉइस,
अगर मैंने 2 करोड़ का परचेज किया तो आई विल गेट द एग्जाम्पशन, मेरा टैक्स जीरो, एंड आई हैव 8 करोड़ रुपीज आइडल फंड्स इन माय पॉकेट व्हिच आई कैन यूज एज पर माय चॉइस, कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है. बट नाउ इंडेक्सेशन हैज बीन रिमूव्ड. नाउ माय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी 3 CR ओनली, दैट्स माय कैपिटल गेन विल बी 7 CR. अब न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में अगर मैं 7 CR इन्वेस्ट करूंगा तो ही मेरा टैक्स जीरो होगा, अदरवाइज आई हैव टू पे द टैक्स. तो दैट इज द मेन थिंग. तो अगर आप देखेंगे तो कैपिटल गेन का पोर्शन बढ़ने से आपको वहां पर एक चैलेंज आएगा कि आपको न्यू रेजिडेंशियल हाउस कंपैरेटिवली ज्यादा अमाउंट का परचेज करना पड़ेगा. सेकेंड थिंग, सेक्शन 54 में बात ये है, हाँ जी सर, बात पंकज ये है, और मैं आपके कमेंट चाहूंगा. हाँ जी. एक तो ये कि लगता है कि सरकार जो है इस बात पे उतारू है कि अगर आप पूरा का मकान नहीं लेंगे तो बाकी पैसा आप बॉन्ड में लगाइए हमारे. बिल्कुल. सरकार के पास पैसा नहीं है. हाँ जी. Actually, if you look at it, today we are 160 lakh crore indebted, basically, which constitutes almost 80% of my GDP. That is the position of the government. और दूसरा ये है कि probably it may ultimately result in black money coming back into these transactions. बिल्कुल है सर, वो लास्ट लाइन में नहीं. Serious implication of this, probably the government has not realized it. कि कल से फिर स्टैंप ड्यूटी भी सफर करेगी और ब्लैक मनी भी पिक्चर में आएगी, कहीं से भी आएगी. सर वो मैंने लास्ट लाइन यही लिखा हुआ है, फर्दर हिट ओवर ए वर्सेस बी. मैंने अपेरेंटली वो वर्ड यूज नहीं किया, दैट ए इन केस ऑफ इमोल प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली. देखिए इसका इंपैक्ट तो आएगा, क्योंकि सर नॉर्मल प्रैक्टिकल पार्लेंस में बात करें तो बहुत लोग बात करते हैं यार कि 10 CR की प्रॉपर्टी है, सर्कल रेट इज समथिंग लाइक 5 CR, तो इट्स बेटर टू हैव 5 CR इन द बी फॉर्म so as to avoid that sir 23.92% tax. But now it is reduced to with surcharge and cess approximately 15%. तो ऑब्वियसली अगर मैं एक लार्ज सिनेरियो पे देखूं तो इंपैक्ट आएगा कि हो सकता है कि मैं बी की बजाय प्रेफर करूं ए, क्योंकि टैक्स रेट्स कंपैरेटिवली क्या हो गए, कम हो गए. तो दैट में हिट ऑन दैट पर्टिकुलर साइड. बट ऑब्वियसली बात है कि मैं ज्यादा असेट्स अब मेरे को एक्वायर करने हैं, तो ज्यादा प्राइस का एक्वायर करना, तो स्टैम्प ड्यूटी इंप्लीकेशन वो थोड़ा सा वहां पे चैलेंज आएगा. दूसरा इंपैक्ट अगर मैं देखूं तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, वहां पर एक आपको सेक्शन 54 में बेनिफिट दिया फॉर सेलिंग ए प्रॉपर्टी एंड कैपिटल गेन्स इज अप टू ₹2 CR. तो उस पर्टिकुलर केस में आप कैपिटल गेन्स को 2 प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और दोनों प्रॉपर्टीज की इन्वेस्टमेंट के कारण यू कैन क्लेम द एग्जम्पशन. नाउ आई हैव हैविंग सेम सेल प्राइस, सेम कॉस्ट प्राइस, बट माय क्वांटम ऑफ कैपिटल गेन इंक्रीज, और हो सकता है उस कारण से मैं वो 2 करोड़ की जो कंडीशन वाला बेनिफिट है वो नहीं ले पाऊं. तो वो भी एक थोड़ा सा हिट आएगा कि मैं एक प्रॉपर्टी बेच के अगर 2 प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूं, तो वो भी एक थोड़ा सा वहां पर चैलेंज आएगा. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स वी ऑल नो, अगर इक्विटी शेयर्स वगैरह में है तो 15% की जगह 20% सरचार्ज कैप इज देयर. सेक्शन 112A वी ऑल नो, जो लॉन्ग टर्म इक्विटी शेयर्स में बेनिफिट आता है उसके अंदर 1 लाख का आपका टैक्स फ्री होता था, दैट हैज बीन इंक्रीज टू 1.2 लाख, 1.25, एंड दैट इज फॉर द फुल ईयर. तो आपके प्रोसीड्स चाहे अप टू 22 जुलाई है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पोस्ट 22 जुलाई है, दोनों में मिला के क्यूमुलेटिव आपका फर्स्ट 1.25 लाख पे कोई भी टैक्स नहीं है. अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स, दे हैव मेड द प्रोविजन दैट विल ऑलवेज बी शॉर्ट टर्म. जनरली मैं मान के चलता हूं इसका इंपैक्ट नहीं आएगा, रीजन बीइंग दीज आर डेट फंड्स. तो उस पर्टिकुलर केस में आप इंटरेस्ट से कंपनसेट होते हो. जनरली आपका परचेज प्राइस और यू कैन से इशू प्राइस, रिडेम्पशन प्राइस जनरली सेम होते हैं. तो इट्स अ वेरी रेयर चांसेस दैट देयर कुड बी अ शॉर्ट टर्म और कैपिटल गेन्स और प्रॉफिट एनी काइंड ऑफ. ये पर्टिकुलर क्लैरिफिकेशन दैट इज इन रेस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन. एक अमेंडमेंट इन्होंने और किया है कि रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अगर आप लेट आउट करते हैं तो उसके लेटिंग आउट प्रोसीड्स इन एनी केस विल बी टैक्सेबल एज पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. अभी तक क्या था कि इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंट ऑफ द असेसी एंड द सराउंडिंग फैक्टर्स, कि आप जब लेटिंग आउट की एक्टिविटीज करते हैं, इज दैट योर बिजनेस और नॉट. इफ इट इज अ बिजनेस, इट इज पार्ट ऑफ बिजनेस हेड. इफ इट इज नॉट योर बिजनेस, देन इट इज पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. बट नॉट, दे हैव मेड द लॉ कि इन एनी केस रेजिडेंशियल हाउस का लेट आउट इनकम वो हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट होगा, बिजनेस हेड का पार्ट नहीं होगा. फ्रेंड्स, दैट मे बी द रीजन कि जब से देखिए न्यू टैक्स रिजीम आया और ओल्ड टैक्स रिजीम में भी एक अमेंडमेंट था कि अगर आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है और इफ यू आर एक्वायरिंग दैट हाउस प्रॉपर्टी थ्रू बोरोड फंड्स, तो उसके इंटरेस्ट के ऊपर इनडायरेक्टली उन्होंने कैप लगाया था. क्या कहा था कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं तो जो आपका बोरोड फंड्स के कारण जो इंटरेस्ट है, इफ दैट एक्सीड्स योर रेंट इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड डिडक्शन, और वो नेगेटिव इनकम आ रही है, दैट मींस कि रेंट के अगेंस्ट यू अलाउ 30% डिडक्शन,
देन इंटरेस्ट एज एन एक्सपेंस, एंड इट इज क्वाइट पॉसिबल कि हाउस प्रॉपर्टी में आपकी इनकम क्या है, नेगेटिव. दैट नेगेटिव इनकम कैन बी सेट ऑफ विद योर अदर इनकम्स मैक्सिमम 2 लाख रुपीस. आप कितना सेट ऑफ कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 लाख. बैलेंस यू कैन कैरी फॉरवर्ड. न्यू टैक्स रिजीम में बोला कि अगर नेगेटिव इनकम आएगी हाउस प्रॉपर्टी में तो दैट कैन नॉट बी सेट ऑफ विद अदर हेड्स एट ऑल. दूसरे हेड से सेट ऑफ ही नहीं कर सकते. एक डिस्प्यूटेड इशू है, मेरा मानना डिस्प्यूटेड है. क्या मैं वो लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं, नहीं कर सकता, न्यू टैक्स रिजीम, चलो वो भी अपने आप में एक चैलेंज है. अब हुआ क्या, दैट कुड बी द पॉसिबिलिटी कि मार्केट के अंदर लोगों ने कहा कि इस इंटरेस्ट एक्सपेंस का इनडायरेक्टली बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो इट्स बेटर टू शो इट एज ए बिजनेस. बिजनेस के अंदर इस तरीके के कैप्स नहीं है, और बिजनेस में अगर लॉस आता है तो यू कैन सेट ऑफ विद एनी हेड ऑफ इनकम एक्सेप्ट सैलरी. So that may be the reason that department has proposed this, Nirmala ji has proposed this particular amendment कि residential house के केस में in any case income house property head में accessible होगी, आप उसको business head में accessible नहीं कर सकते. Partnership firms, no change in tax rates. Remuneration they have increased, which is allowable to the partners. पहले 3 लाख रुपए तक कुछ क्वांटम था, देन मोर देन 3 लाख के ऊपर था. दैट क्वांटम हैज बीन इंक्रीज टू 6 लाख रुपीस. चलो इतने सालों बाद कुछ ध्यान तो आया कि हाँ महंगाई बढ़ गई है, कुछ ना कुछ पार्टनर्स की सैलरी भी बढ़नी चाहिए, नहीं तो अदरवाइज पार्टनर्स की सैलरी पे कैप ही लगा रखा था कि इसके बियॉन्ड अलाउड नहीं है. ऑल्दो आई डू नॉट थिंक सो दैट इज अ मेजर इंक्रीज इफ आई टॉक अबाउट, क्योंकि पहले क्या था, 3 लाख रुपए के ऊपर 90%, दैट इज 2,70,000. उसके अगले 3 लाख पे भी देखो तो 60%, दैट मेक्स 180. अब पहले 6 लाख पे 90%, दैट मेक्स इज 540. तो 90,000 की सैलरी बढ़ गई है सारे वर्किंग पार्टनर्स के मिला के, विच इज अलाउबल नेट इम्पैक्ट. तो चलो जो भी है, 90,000 रुपए परसेंटेज टर्म्स में देखे तो बहुत अच्छा है, कोई कम नहीं है. अपने आप में देखे तो 16-20% के आसपास का इंक्रीमेंट हो गया, तो दैट्स अ गुड प्रमोशन ऑफ द पार्टनर्स इफ आई टॉक अबाउट. नाउ एक प्रोविजन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ऑब्वियसली टू कर्ब द प्रैक्टिस कि वो पर्टिकुलर इनकम डिस्क्लोज नहीं हो रही. द पार्टनर सैलरी इंटरेस्ट विच इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द पार्टनर, देयर वाज नो टीडीएस प्रोविजन एट ऑल. तो डिपार्टमेंट के लिए मुझे लगता है कि वो इन्फॉर्मेशन गैदर करना कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो रहा होगा. तो दे हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस पर्टिकुलर प्रोविजन 194T कि अगर आप पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट, कमीशन सब क्यूमुलेटिवली पूरे साल का अगर अमाउंट मोर देन 20,000 है तो उस पर्टिकुलर केस में यू हैव टू डिडक्ट टीडीएस एट द रेट ऑफ 10%. तो मुझे लगता है वो 90,000 रुपए जो एक्स्ट्रा मिलने वो टीडीएस के रूप में जमा हो जाएंगे. तो दैट इज गोइंग टू बी द थिंग. अगर पार्टनरशिप से 20,000 रुपया साल ही मिलना है तो उस पार्टनरशिप को करना क्या? ठीक बात है सर. अगर साल का 20,000 रुपया मिलना है किसी पार्टनरशिप फर्म में से तो उसका करना क्या? मतलब दिस इज रिडिकुलस. आप कोई लिमिट बांधते हैं तो लिमिट को यार कहीं ढंग से तो बांधो. आप 2 लाख कर दो, आप 1 लाख कर दो. मतलब कि आप क्या चाहते हो कि एक पार्टनर महीने का घर पे कितना लेके जाएगा? 2,000 रुपया भी नहीं. 2,000 नहीं कहना चाह रहे हो? तो बिजनेस कर क्यों रहा? व्हाई इज इट डूइंग बिजनेस? मतलब कि आप अगर टीडीएस की भी लिमिट बांधना चाहते हो तो कोई ढंग से तो लिमिट बांधो यार. मतलब कि आई कांट अंडरस्टैंड दिस एंटायर. और अगर रिटर्न फाइल हो रही है पार्टनरशिप फर्म की, उसमें पार्टनर्स का शेयर्स आइडेंटिफाई हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, आपको क्या ढूंढना उसमें? आप क्या नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे वो बताएं. मतलब कि अपनी वीकनेसेस जो हैं वो आप छोड़ रहे हो दूसरे के ऊपर भी. तुम दो. और वो ये भी नहीं है पर्पस ये है कि सरकार एडवांस टैक्स चाहती है. सीधी सी बात ये है कि सरकार के पास पैसा नहीं. पिछली बार तो आरबीआई ने 2.1 लाख करोड़ दे दिया तो सरकार चल रही है. अब कल क्या होगा नोबडी नोज बेसिकली कि 2.1 लाख मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि उससे पिछले साल तो 86,000 ही मिला था, 86,000 लाख. तो ये सारी चीजें अपने आप में एक बड़ा भारी वो है. मुझे समझ नहीं आ रहा कि विच डायरेक्शन वी आर गोइंग. वी आर ट्रीटिंग दैट एवरीवन इज ए थीफ बेसिकली, कि इनको हमें पकड़ना. आपके पास बैलेंस शीट है, आपके पास P&L है, आपके पास रिटर्न है फर्म की, उसमें शेयर डिवीजन दिया हुआ है, उसमें क्या पकड़ना चाह रहे हो आप? व्हाट आर यू ट्राइंग टू फाइंड आउट? यहाँ तो फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दे दो सैलरी के ऊपर, अगर सैलरी का ही प्रोविजन लगाना तो यार गिव अ स्टैंडर्ड डिडक्शन आल्सो. वो सब नहीं है सर, वो कोई बेनिफिट नहीं है. वो ये I think on all these issues, sir, I think there should be a detailed representation to the government that these are hardships to उससे SSC. कुछ नहीं होना. अब इसके अंदर एक इंटरप्रिटेशनल इशू आ रहा है. पर मुझे ये 20,000 बाल्की तो चलो यार आपने 10% तो मजाक है ये 20,000. वो टीडीएस लगाया, ठीक है, हो जाएगा टीडीएस. बल्कि अल्टीमेटली भी तो टैक्स देना ही है ना पार्टनर ने. इसमें तो ये तो है नहीं कि पार्टनर ने टैक्स नहीं देना.
पर ये जो 20,000 वाली लिमिट है ना, इट इज ए मॉकरी ऑफ द एंटायर सिस्टम। True. बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो बहुत सर कम क्वांटम है पार्टनरशिप फर्म के केस में, दैट इज वेरी लो अमाउंट। इंस्टेड इसको डायरेक्ट कर देते हैं कि भी ठीक है, वट एवर द अमाउंट इज देयर यू हैव टू डिडक्ट टीडीएस। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओनली, नथिंग एल्स। इसमें सर एक इंटरप्रिटेशनल इशू आ रहा है, मेरे से कल किसी ने क्वेरी भी रेज करी, तो वहां पर लिखा हुआ है दिस प्रोविजन इज इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। तो अभी तक तो मेरा लॉ का जो इंटरप्रिटेशन था कि अगर 1 अप्रैल 25 समथिंग लिखा है तो दैट मींस असेसमेंट ईयर 25-26, दैट मींस असेसमेंट ईयर वो ऑलरेडी लागू हो गया, लागू हो गया। तो दैट इज हो गोइंग गया। टू बी अ चैलेंज फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स सर। वहां पे कोई टीडी 3 महीने में था ही नहीं ना लॉ, तो यू कैन नॉट बी ट्रीटेड टू बी इन डिफॉल्ट फॉर दैट। आपको डिफॉल्ट तो अगले महीने से ट्रीट करेंगे ना, Right. क्योंकि ऐसा यहाँ पे फाइनेंस बिल में जब भी लिखा जाता है विद इफेक्ट फ्रॉम, दैट मींस द असेसमेंट ईयर। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंजल टैक्स that has been removed, and that is simply says if a company is issuing shares at premium and that amount is more than fair market value of those particular shares, the fair market value obviously need to be calculated as per the prescribed rules, then that difference is taxable for that particular company as part of income from other sources. And I think this was way back introduced in 2012 with effect from 1st of June 2012 if I'm not wrong. और बाद में जाके अमेंडमेंट हुआ, अर्लियर इट वाज इन रेस्पेक्ट ऑफ शेयर्स इश्यूड टू द रेजिडेंट ओनली, एंड रिसेंटली अराउंड 1 or 2 years back it has been amended. वहां पर लिखा कि if you are issuing shares to the non-resident also this section is applicable. Now this particular section has been altogether omitted कि अगर अब आप शेयर्स प्रीमियम पे इशू करते हैं मोर देन द मार्केट वैल्यू, उस कारण से कोई भी आपकी टैक्स लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। आर वी गोइंग टू द प्री एरा पीरियड ऑफ 2012? So, Pankaj ji, does that mean we don't need a valuation report now, as far as income tax is concerned? जतिन जी देखिए, वैल्यूएशन रिपोर्ट जितना मेरा मानना है वहां पे वैल्यूएशन रिपोर्ट भी ना मैंडेटरी नहीं थी। मतलब उसमें वैल्यूएशन का मैकेनिज्म दिया हुआ था कि इस तरीके से वैल्यू किया जाएगा अनलिस्टेड शेयर्स इफ आई टॉक अबाउट। वहां पे ये नहीं था कि आपको वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑब्टेन करनी है। तो अब अगर इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव में देखूं तो वैल्यूएशन ही नहीं करनी। ठीक है, कंपनीज एक्ट में रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं कि किस तरीके का आपको कितना, कोई मेरे को आई हैव नो आइडिया अबाउट द कंपनीज एक्ट कि वहां पे इस तरीके की रेस्ट्रिक्शंस वगैरह कंडीशंस है या नहीं है। इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव में देखूं तो वैल्यूएशन रिपोर्ट इज नॉट रिक्वायर्ड एज फार एज दिस सेक्शन इज कंसर्न्ड। एंजल टैक्स है वो तो स्टार्टअप्स के लिए था ना, मोर और लेस। राइट राइट, ठीक है, वहां पे लिस्टिंग की कोई बात ही नहीं थी, उसमें सेबी आती नहीं पिक्चर में। सेबी डज नॉट कम इनटू प्ले। ये आपने उनको एक अथॉरिटी दे दी कि 1 रुपए का शेयर इशू करो और उस पर 100 रुपए प्रीमियम ले लो, और जो उस पे एमसीए वालों की रजिस्ट्रेशन फीस है वो कहीं पे भी जाती रहे, कोई दिक्कत नहीं है हमको। आई थिंक यू आर अगेन गिविंग ए फ्री हैंड टू द बिजनेस। ये किसी ने, आई विल नॉट लाइक टू कमेंट बिकॉज यू आर ऑन एयर बेसिकली राइट नाउ। ये क्यों हुआ आई कैन नॉट से, आई कांट मेक इट आउट। आप यहाँ तो प्रीमियम पे टैक्स की बात ना करते, शुरू में ही बात करते। 2001 में तो आप ये 2021 में तो आप नॉन रेजिडेंट पिक्चर में लेके आए उसमें। तो व्हाट इज द कंसिस्टेंसी ऑफ द पॉलिसी? द सेम फाइनेंस मिनिस्टर हैज ब्रॉट इट इन। तो अब हम ये समझे कि सैनिटी हैज प्रिवेल्ड, तो वो भी नहीं मैं कह सकता बेसिकली। सर मेरा इस पे एक क्वेश्चन भी है, आई वुड लाइक टू ऐड ऑन टू योर पॉइंट। जब सेम गवर्नमेंट ने पहले इस प्रोविजन को लेकर आया और सेम गवर्नमेंट उसको रिपील कर रही है, I have seen particularly in case of my clients also, we went even up to IT-80 level to win these kind of cases, and now they have repealed it back. So अगर अभी जो जिनके IT-80 के केसेस या हाई कोर्ट या कहीं पे भी केसेस चल रहे होंगे तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होने वाला है? This is with effect from assessment year 25-26. Their case will become weak. Yes. Please sir, please It's as sir. simple as that. Right. इंटेंट अब तो क्लियर हो गई ना कि इंटेंट ये थी नहीं कि टैक्स करना। Exactly. Exactly. I think वो initially जो लोग कुछ misuse कर रहे थे in the private limited company to extract or maybe some sort of a conversion activity or something, it was brought in for that purpose, but it actually got into hitting the startup industry, and now basis whatever sanctity prevailed, I think they have now repealed it. हम भूल गए हैं कि बाईजूस में क्या हुआ और पेटीएम में क्या हुआ, हम ये भूल गए। Absolutely. We have looted the people, very frankly we have forgotten this, कि कितने का भी शेयर कितने पे भी आपने वैल्यू करके ठोक दिया मार्केट में। True. I think anyway ये तो है, किसी की सजेशन होगी, किसी ने एक्सेप्ट कर ली है तो we must move on.
Yeah, please. उसमें मेरा पॉइंट यही है कि मुझे लगता है कि आफ्टर दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन, आई थिंक असेसिंग ऑफिसर्स को कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्टली इंस्ट्रक्शन जाएगी कि अगर प्रीमियम पे शेयर्स इशू हुए हैं तो डोंट गो फॉर 56 to 7B, डोंट गिव काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ रिलीफ बाय मेकिंग इट टैक्सेबल एट 30%, चेक आउट विद सेक्शन 68। अगर जेन्युइन नहीं है, लेवी टैक्स एट द रेट ऑफ 78% इंस्टेड ऑफ द 30%. Otherwise that AO need to check out whether 68 or 56 to 7B, and I have seen many cases जहाँ पे taxability 56 to 7B में होती है, section 68। फिर 5 साल बाद कर विवाद स्कीम लेके आएंगे, दोबारा कर विवाद स्कीम लेके आएंगे, क्योंकि लिटिगेशन बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बट सर आई थिंक अगर मैं विवाद से विश्वास की बात करूं तो ये 78% टैक्स के केस में दैट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर द गवर्नमेंट इन माय ओपिनियन, दैट इन एनी केस अगर मैं विवाद से विश्वास में जाता हूं, आई हैव टू पे द टैक्स लायबिलिटी एंड दिस 78% इज माय टैक्स। आप समझते हो कि ये विवाद से विश्वास जो है वो इसकी फेवर में होना था एसएससी की, इट इज डेफिनेटली इन द फेवर ऑफ द गवर्नमेंट ओनली। बिल्कुल, पेनल्टीज आप लड़ते रहते हो, इंटरेस्ट आप लड़ते रहते हो, आफ्टर 5 years यू में विन, आफ्टर 7 years यू में विन। अब आपने ये कहा कि भाई अगर आपने 21 से पहले का है तो आप हमको 35% दे दो, उसके बाद का तो आप हमें 20% दे दो, अब कितना 20 से 25% दे दो, ठीक है, तो उतने पे आगे सेटल कर जाओ। तो अगला कहता मरता क्या ना करता यार, इसको खत्म करो ना, व्हाई टू गेट इनटू ऑल दिस। वही वो उसमें होना जो आपकी डिस्प्यूटेड डिमांड्स हैं, वो कहते हैं यार मैं दे के इसको खत्म करूं, बिल्कुल 100% पे करूं या 110% पे करूं, पीछे वाला हूं या आगे वाला। मुझे ये समझ नहीं है, इसमें 2 डेट देने की जरूरत ही नहीं थी ना, 2 रेट देने की क्या जरूरत थी। आप सीधा कहते यार जब भी हो आप 110% या 110 को 105 कर देते। हाँ सर, सिंगल डेट, बिल्कुल सर, सिंगल डेट रखते, दैट्स ऑल। आप वेटेड कर लेते हो तो यार बैठ के। सर उसके अंदर मैं तो ऐसे देखता हूं, अगर एज एन एसएससी बात करूं तो द लिटिगेशंस विद द सीआईटी अपील्स आर पेंडिंग सिंस 2020। सर 2019 में जो अपील्स फाइल्ड हैं स्टिल पेंडिंग विद द सीआईटी अपील्स। अब अगर वो सीआईटी अपील्स में डिस्पोज ऑफ हुई होती और वो ट्रिब्यूनल में पेंडिंग होती तो इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट आई नीड टू पे एज पार्ट ऑफ विवाद से विश्वास द हाफ ऑफ दैट पर्टिकुलर अमाउंट, बट आई नीड टू पे फुल क्योंकि वो सीआईटी अपील्स में पेंडिंग पड़ी है अभी तक। ठीक है, दैट वी आर इग्नोरिंग टीडीएस। ओके, स्मॉल अमेंडमेंट दे हैव मेड that now employee can give the details of the TCS collected of him to the employer। पहले ये प्रोविजन था कि अगर एम्प्लॉय का और कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ है on any other incomes other than salary, so he can give declaration of that particular other incomes and TDS to the employer, and employer while calculating the TDS on salary has to account for those incomes and TDS। उसमें TCS का रेफरेंस नहीं था, now they have given that particular reference। now it is quite possible कि एक एम्प्लॉय पर्सनल लाइफ में कार परचेज कर रहा है more than 10 lakh rupees, TCS is there, foreign travel कर रहा है, TCS is there, now he can give that particular TCS information to the employer, but still challenge is there because in section 192 regarding TDS on salary a provision is there which is still there, no amendment has been made कि अगर एम्प्लॉय ने कोई इनकम्स और टीडीएस और टीसीएस का अगर डिक्लेरेशन एम्प्लॉयर को दिया है, दैट एम्प्लॉयर हैज टू कंसीडर while calculating TDS on salary, but in any case TDS on salary cannot be below the amount which would have been there had no declaration been there। अगर एम्प्लॉय ने ऐसा कोई डिक्लेरेशन नहीं दिया होता तो कितना टीडीएस डिडक्ट करना था, उतना तो मिनिमम टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। तो इफ आई टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव, तो टीसीएस के केस में एम्प्लॉय को बेनिफिट तभी होगा व्हेन इट इज इन रिलेशन टू एनी काइंड ऑफ इनकम। अगर एक मोटर कार परचेज कर रहा है, एक फॉरेन ट्रैवल कर रहा है, तो वहां पर कोई यू कैन से कि लिंक्ड इनकम नहीं है, तो इट इज गोइंग टू अफेक्ट ओनली द टीडीएस ऑन सैलरी, और वो रिलैक्सेशन उन्होंने वहां पर नहीं दिया है। तो दैट शुड बी सीन कि अगर आप अल्टीमेटली बेनिफिट देना चाहते हो तो उस तरीके का कोई आप रिलैक्सेशन दो। कुछ आपके सेक्शंस में टीडीएस का रेट कम कर दिया, बट दैट इज इफेक्टिव फ्रॉम 1st of October। इमोल प्रॉपर्टी के केस में इट इज अ काइंड ऑफ यू कैन से क्लैरिफिकेशन बट इफेक्टिव प्रोस्पेक्टिवली कि प्रॉपर्टी का कंसिडरेशन देखना है, पर पर्सन ट्रांजैक्शन अमाउंट नहीं देखना। अगर प्रॉपर्टी इज फॉर मोर देन 50 लाख रुपीज, फॉर एग्जांपल 60 लाख, बट वी आर द 2 buyers 30 लाख ईच, तो उस पर्टिकुलर केस में फिर भी टीडीएस डिडक्ट होगा। TCS is going to be there on the some notified goods, that goods are not notified till date, obviously that will be notified after passing of that finance bill,
कि उन गुड्स के केस में भी अगर उनका क्वांटम 10 लाख से ज्यादा है तो उस पर्टिकुलर केस में सेलर टीसीएस कलेक्ट करेगा। इन द सिमिलर वे इफ आई टॉक अबाउट द मोटर व्हीकल्स, तो हो सकता है जो लग्जरी आइटम्स हैं जहां पे उनकी कॉस्टिंग कितनी है 10 लाख से ज्यादा, बट देयर इज ए कैच वेदर दिस 10 लाख अमाउंट इज नीड टू बी सीन क्यूमुलेटिव फॉर द होल ईयर और फॉर एवरी ट्रांजेक्शन सेपरेटली। अगर मैं एक ही पर्टिकुलर सेलर के पास जाता हूं और वहां पे मल्टीपल सामान परचेज करता हूं फॉर मोर देन 10 लाख, इट डिपेंड्स कि वो गुड्स कौन से नोटिफाई होते हैं, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। कुछ रिलैक्सेशंस दिए हैं रिगार्डिंग टीडीएस स्टेटमेंट्स, कुछ वहां पे स्ट्रिक्टनेस भी बढ़ाई है। पहले ये था कि अगर टीडीएस स्टेटमेंट्स अगर आपने टाइमली फाइल नहीं करी तो उस पर्टिकुलर केस में पेनल्टी इज देयर, बट वहां पर एक रिलैक्सेशन था कि अगर विद इन 1 ईयर आपने फाइल कर दिया, दैट इज डिले ऑफ 1 ईयर ओनली, तो उस पर्टिकुलर केस में पेनल्टी नहीं लगेगी। लेट फीस इज देयर 200 रुपीज पर डे, तो उस पीरियड को 1 ईयर से रिड्यूस करके 1 मंथ कर दिया है। सेकेंडली, अगर आपने टीडीएस डिपॉजिट नहीं किया टाइमली तो देयर इज अ प्रोविजन ऑफ द प्रोसिक्यूशन, और वहां पे कुछ ऐसा प्लिथोरा ऑफ जजमेंट्स थी कि अगर आपका डिले 2 दिन का भी है, देयर इज अ नो रीजनेबल कॉज, प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएटेड। वहां पे रिलैक्सेशन दिया है कि अगर आपने टीडीएस रिटर्न की जो ड्यू डेट है वहां तक अगर टीडीएस भी जमा करा दिया, ऑल्दो देयर इज डिले, तो नो प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स विल बी देयर। शेड्यूल एफए, that is in relation to foreign assets. अगर आप resident and ordinary resident हैं, you have to disclose all your foreign assets or beneficial interest or signing authorities in any kind of demat account, trading account, bank accounts, whatever. अगर आप वहां पे डिस्क्लोज नहीं करते हैं एक पर्टिकुलर असेट, या आप रिटर्न ही फाइल नहीं करते हैं या शेड्यूल एफए नहीं भरते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में फॉरेन ब्लैक मनी एक्ट पिक्चर में आता है, एंड विच सेज दैट पेनल्टी ऑफ ₹10 लाख विल बी लेवीड। And friends, it is irrespective of the quantum of that particular asset, which is not disclosed in part of Schedule FA. अगर वो 20,000 रुपए का भी है तो भी पेनल्टी का प्रोविजन कितने रुपए का? 10 लाख। वहां पे सिर्फ एक ही रिलैक्सेशन था इन रेस्पेक्ट ऑफ बैंक अकाउंट्स। अगर बैंक अकाउंट्स का बैलेंस अप टू ₹5 लाख था तो उस पर्टिकुलर केस में आपका फॉरेन ब्लैक मनी एक्ट पिक्चर में नहीं आता था। नाउ दे हैव चेंज्ड द लॉ, इंस्टेड ऑफ बैंक अकाउंट्स दे हैव रिटन एवरी एसेट्स एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी, और उनका अमाउंट कितना हो क्यूमुलेटिव अप टू 20 लाख रुपीस। अगर वो आपने डिस्क्लोज नहीं भी किया तो फॉरेन ब्लैक मनी एक्ट पिक्चर में नहीं आएगा इन रेस्पेक्ट ऑफ पेनल्टी। देखिए वो अनडिस्क्लोज है, अनअकाउंटेड इनकम से, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट मे बी इवन 20,000, दैट मे बी 2 लाख, दैट मे बी 2 करोड़। तो अगर आपने फॉरेन इनकम्स को डिस्क्लोज नहीं किया या फॉरेन एसेट्स को डिस्क्लोज नहीं किया, अनअकाउंटेड इनकम से परचेज किया है, तो वहां पर फॉरेन ब्लैक मनी एक्ट पिक्चर में रहेगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। नॉन डिस्क्लोजर की पेनल्टी नहीं लगेगी अगर वो क्वांटम इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा कितना है, मैक्सिमम 20 लाख रुपीस। तो दैट इज द वेलकम, क्योंकि बहुत छोटे छोटे केसेस में होता है, एमएनसी में जो एम्प्लॉइज काम करते हैं उनको फॉरेन कंपनी के होल्डिंग कंपनी के शेयर्स अलॉट हो जाते हैं, वैल्यूइंग 1 लाख रुपीस, 2 लाख रुपीस, और जनरली क्या होता है, सैलरीड पर्सन ट्राई टू फिल आउट देयर रिटर्न्स देयर ओन, तो उनको वो चीज पता ही नहीं होती कि ये शेड्यूल एफए भी भरना है, एंड दे आर फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेस। पता चला 1 लाख रुपए के हिसाब है, डिस्क्लोज ही नहीं हुए। तो वो सारे असेसिस को इन्होंने बाहर किया, बट वहां पे इन्होंने डेट लिखी है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 24। नाउ व्हाट डज दैट मीन 1 अक्टूबर 24? मतलब मैं जो रिटर्न्स उससे पहले फाइल कर चुका, क्या उन पे भी बाद में ये 10 लाख की पेनल्टी पॉसिबल है, नहीं है? मतलब दैट इज समथिंग लाइक, आप रिलैक्सेशन दे देते कि भी ठीक है, पुराने केसेस है, नए केसेस है, व्हाटएवर, अगर 20 लाख तक का क्वांटम है, हम आपका भैया ठीक है मैटर क्लोज कर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर। व्हाट डज दैट मीन कि भाई साहब इसका मतलब अभी जो रिटर्न्स भर रहे हो और फाइनेंशियल ईयर 23-24 ध्यान रखना भाई साहब, 75,000 रुपये तो 10 लाख रुपए ले लेंगे। हाँ जी, तो दैट इज द सेफर साइड, दैट ऑब्वियसली, बट वी कैन ऑब्वियसली ट्राई टू फाइट एंड लिटिगेट कि जी आपने एक रिलैक्सेशन प्रोविजन दिया, क्यूरेटिव प्रोविजन दिया है, तो दैट शुड बी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिव। But still it is advisable कि अगर financial year 23-24 if you are holding that foreign assets, it's advisable that disclose as part of the return. तो 1 अक्टूबर हो सकता है, नोइंगली डेट रखी होगी, 30 सितंबर इज द लास्ट, नहीं 31 अक्टूबर है वैसे तो, अगर मैं देखें तो 1 अक्टूबर मे बी द लिमिट, व्हाटएवर द रीजंस, कि जुलाई वालों को तो भैया भर देना, छोड़ना मत। बाय बैक ऑफ शेयर्स, अब बाय बैक में भी जैसे सर ने बताया कि भी ठीक है भाई इसी गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए, तो बाय बैक में भी देखें तो कुछ पर्टिकुलर चेंजेस इसी गवर्नमेंट ने किए थे, एंड नाउ दे हैव चेंज्ड इट ऑल। फ्रेंड्स, इफ वी गो वे बैक, तो अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स बायबैक करती थी, द कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉफिट्स आर टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर। ये पुराना प्रोविजन यही था, सेक्शन 46 कैपिटल वाज देयर, तो वो कहता था कि शेयर होल्डर्स को क्या पे करना है, टैक्स, एंड दैट वाज द कैपिटल गेन्स प्रोविजन। तो दैट वाज नॉर्मल कैलकुलेशन कि जो आपको बायबैक में कंसिडरेशन मिला है, दैट विल बी योर कंसिडरेशन ट्रांसफर प्राइस, एंड द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सब्जेक्ट टू इंडेक्सेशन लॉन्ग टर्म विल बी योर कॉस्ट, एंड डिफरेंस विल बी टैक्सेबल एज लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म एज द केस मे बी। बट इन बिटवीन वहां पे चेंजेस आए, डिविडेंड को टैक्स किया इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी,
शेयर होल्डर्स के हाथ में एग्जेम्प्ट किया, ऑल्दो उसमें भी डेवलपमेंट थे, फिर समझ में आया नहीं टैक्स रेट कम रह गया, तो कहा कि अगर शेयर होल्डर को 10 लाख से ज्यादा डिविडेंड मिलेगा तो एक्सेस पे 10% टैक्स देना है, कुछ कंपनी से ले लो, कुछ शेयर होल्डर से ले लो, पकड़ लो दोनों को, दोनों पे कंप्लायंस बर्डन भी डाल दो। फिर समझ में आया कि बायबैक के थ्रू इज नथिंग बट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, तो हम डिविडेंड की तरह ही कंपनी से ही बायबैक पे टैक्स लेंगे। तो दे इंट्रोड्यूस ऑल टुगेदर न्यू प्रोविजंस 115 क्यू एंड सीरीज ऑफ दैट, कि अगर कंपनी इशू प्राइस से ज्यादा पे बायबैक करेगी, द डिफरेंस विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी एट द फ्लैट रेट ऑफ 20% प्लस सरचार्ज प्लस सेस। बट अराउंड 3 or 4 years back the dividend was made taxable in the hands of the shareholder. अब 3 या 4 साल बाद याद आया कि ये शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होना चाहिए, तो बायबैक इज नथिंग बट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, तो ये भी शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होना चाहिए। अब डेवलपमेंट देखिए, पहले क्या था, कैपिटल गेन्स हैड टैक्सेबिलिटी, then they shifted the taxability in the hands of the company. Now again they have shifted the taxability in the hands of the shareholder, but in altogether different way. Whatever the buyback price will be there will be taxable in the hands of the shareholder as part of income from other sources. That means it will be taxable at 30% प्लस सरचार्ज प्लस टैक्स लग गया ना, ज्यादा टैक्स लग गया। बिल्कुल सर, एप्लीकेबल रेट्स में मान के चल रहा हूं, बायबैक, गुड कॉर्पोरेट्स, एचएनआईज, उन पर्टिकुलर केस के अंदर आपका 30% प्लस सरचार्ज, कैप इज देयर 15% प्लस 4%, तो दैट मेक्स इट समथिंग लाइक 34% और 35% राउंड 34% आ गया, जो कंपनी के बायबैक के केस में वाज इफेक्टिवली अबाउट 20-22% और समथिंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आप ये देखिए, ठीक है, चलो हाँ जी, दिस इज इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर। हाँ जी, पंकज आगे बताएगा, वो इम्पोर्टेंट है कि कॉस्ट कहाँ गई उसकी। हाँ जी। तो अब देखिए, पहली बात, ये प्रोविजन 1 अक्टूबर से इफेक्टिव है, तो जो बायबैक 1 अक्टूबर के या उसके बाद होंगे उनके लिए प्रोविजंस लगेगा। तो अब देखिए, अब ठीक है, आप उसको अदर सोर्सेज में ले गए, एप्लीकेबल रेट्स पे टैक्सेबल कर दिया, ग्रॉस अमाउंट पे कर दिया। अब इसमें भी देखिए उसको क्या माना गया, डिविडेंड, डिविडेंड की डेफिनेशन चेंज करी गई है। अब मैंने उसको पढ़ना चालू किया कि यार कंपनी की बुक्स में क्या प्रॉफिट की लिमिटेशन, वी ऑल नो कि डिविडेंड के केस में अभी तक प्रोविजंस क्या है कि जितने कंपनी की बुक्स में प्रॉफिट्स हैं, टू दैट एक्सटेंट दैट अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज डिविडेंड, उसके बियॉन्ड का अमाउंट डिविडेंड ट्रीट नहीं होता। बट जब इन्होंने ये क्लॉज इंसर्ट किया, क्लॉज नंबर एफ, तो वहां पे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का कोई भी रेफरेंस नहीं दिया। दैट मींस वेदर देयर आर सफिशिएंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और नॉट। आई एम टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ इनकम टैक्स। मुझे नहीं पता कंपनी एक्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या है कि आपको प्रॉफिट चाहिए, व्हाटएवर विल बी द सोर्सेज ऑफ द बायबैक। तो व्हाटएवर द अमाउंट मे बी, द ग्रॉस अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज डिविडेंड इररेस्पेक्टिव ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, इररेस्पेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और उस पे आपको एप्लीकेबल रेट्स जो मैं मान के चल रहा हूं, दैट गो अप टू 42 point something percent in all regime and 39% up to sorry, that will be 35% क्योंकि यहाँ पे सरचार्ज का कैप है 15%। Now regarding the cost, अब मेरा क्वेश्चन ये आएगा जी, मैंने तो शेयर ओपन मार्केट से परचेज किया था 100 रुपए में, बायबैक हो रहा है, मैं मान के चल रहा हूँ चलो हायर प्राइस पे बायबैक हो रहा है 120 में, तो आइडियली मेरे हाथ में टैक्स 20 रुपीज पे लगना चाहिए, शुड नॉट बी ऑन 120, बट द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टिंग टैक्स ऑन 120। गवर्नमेंट ने कहा नहीं 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 नहीं, 100 रुपए का आपको बेनिफिट देंगे, आपकी जेब से गए हैं ना, वी विल गिव यू द बेनिफिट। क्या बेनिफिट दिया उन्होंने? कहा दैट 100 रुपीज दैट पर्टिकुलर शेयर इज गोइंग टू एक्सटिंग्विश ऑन दैट पर्टिकुलर बायबैक ऑफ शेयर्स, तो आपका ट्रांसफर तो है, इसका मतलब कैपिटल गेन्स हेड तो अप्लाई होंगे, बट कंसीडरेशन प्राइस विल बी ट्रीटेड एज निल। व्हाट डज दैट मीन? कि जो मैंने कॉस्ट इंकर करी है, दैट विल रिजल्ट इनटू लॉस अंडर हेड कैपिटल गेन्स। फिर मैंने कहा चलो ओके, दैट इज ओके, चलो लॉस दे दिया, सेट ऑफ मिल जाएगा, बात बराबर है ना, कान कैसे पकड़ लो, लॉस मेरे लिए तो कॉस्ट ही है ना। बट जैसे मैं आगे डेप्थ में जाता हूं, तब मुझे समझ में आता है कि वट एवर द लॉस इज देयर अंडर हेड कैपिटल गेन्स, पहली बात तो विदाउट इंडेक्सेशन है, तो वो तो आप भूल ही जाओ कि आपका लॉस कोई एग्जीग्रेटेड होगा। ठीक है जी, अब मैंने 100 रुपए का शेयर एक्वायर किया, भी 100 रुपए का लॉस आ गया, इट मे बी लॉन्ग टर्म, इट मे बी शॉर्ट टर्म। जब मैंने आगे पढ़ना स्टार्ट किया तो समझ में आया कैपिटल गेन्स हेड लॉसेज कैन नॉट बी सेट ऑफ विद इनकम्स अंडर अदर हेड्स। Capital gains head losses can be set off with capital gains only. Gains only. अब अगर मेरा ये लॉन्ग टर्म लॉस है, तो आई कैन सेट ऑफ विद लॉन्ग टर्म ओनली, और लॉन्ग टर्म पे मैक्सिमम टैक्स नाचेगी, सीधी सी बात है, नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। बस बस सर, बायबैक्स बंद, उस साल तो सरकार को टैक्स चला ही गया, फिर उसके बाद आप वेट करते रहो कि मेरे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आए तो मैं इसको सेट ऑफ करूं। तो मैं तो इनडायरेक्टली ये कहता हूं कि कई बार कहते हैं ना कि जी आपने टैक्स ऑडिट की लिमिट बढ़ाई ग्रेजुअली फ्रॉम 1 CR टू 10 CR, तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल्स हैं उनके पास कंपैरेटिवली प्रोफेशनल प्रैक्टिस थोड़ी सी कम हो गई इन टर्म्स ऑफ टैक्स ऑडिट, कि भी देखो 10 करोड़ के अंदर बहुत सारे लोगों को टैक्स ऑडिट नहीं करानी।
तो आई थिंक ये एक हिट जाएगा कहीं ना कहीं डिफरेंट फील्ड प्रोफेशनल्स, इफ आई टॉक अबाउट, जहां पर वो बायबैक से रिलेटेड अगर practice बायबैक्स करते बहुत तो काम होता है, दिस बहुत इज कम, गोइंग बैक। या बिल्कुल। तो तो अब अगर लॉन्ग, पंकज जी, हाँ जी, अभी तक हाँ आप जी, 1 घंटे से जितने भी प्रोविजन बता रहे हो सब सुन सुन के बहुत नेगेटिव लग रहा है, कुछ अच्छा भी आया है? अच्छा, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था जी, थैंक यू सो मच। तो उसका मैं देख लेता हूँ, अच्छा ऐसा कुछ नहीं नहीं, यू कैन प्लीज नहीं। कंटिन्यू, आई वाज जस्ट सेइंग ऑन अ ये तो लाइटर नोट। असेसमेंट है, तो असेसमेंट तो कभी भी अच्छी हो ही नहीं टीडीएस के सकती। रेट्स घटाए हैं, टीडीएस के रेट्स घटाए हैं, ऐसा नहीं है। ये हाँ अच्छा है जी, जी, विवाद से विश्वास अगर मैं बात करूं तो ये अच्छा है। वो टीडीएस के रेट्स भी घटाए हैं, वो भी अच्छा है, ऐसा ऐसा नहीं है। श्योर श्योर। और 1023C वाला भी जो किया है वो भी अच्छा ही किया, उसको जो मर्ज कर दिया 11 में, हाँ और वो सर बिल्कुल बिल्कुल, वो सर थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन वो वो अच्छा उसमें किया उन्होंने। उसमें अच्छा किया। राइट। तो बायबैक के केस में अगर आपका लॉन्ग टर्म लॉस आएगा, कैन बी सेट ऑफ विद द लॉन्ग टर्म गेन्स, और लॉन्ग टर्म गेन्स पे वी नो ऑल दैट मैक्सिमम टैक्स रेट इज 12.5%। तो आपको सेट ऑफ तो मिल रहा है अगेंस्ट द इनकम विच आर लेविबल टू टैक्स एट द रेट 12.5%, बट आप उधर डिविडेंड पे टैक्स पे करो एट द रेट ऑफ 30%। दैट इज नॉट द पैरिटी। वो एक चीज एब्सर्ड लग रही है, दैट मतलब ये डाइजेस्ट होने वाली चीज नहीं है। अगर शॉर्ट टर्म लॉस है, तो अगर आपके नॉर्मल शॉर्ट टर्म गेन्स हैं जिन पे एप्लीकेबल रेट लगता है, तो आप कहीं ना कहीं पैरिटी पे हो। बट अगर आपके नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स विच इज रेयर इन नेचर, इफ आई टॉक अबाउट, जनरली शॉर्ट टर्म गेन्स अगर देखें तो सिक्योरिटीज मार्केट से होते हैं, और वहां पर भी मैक्सिमम केसेस में टैक्स रेट कितना है, 20%। तो अगेन आप सेट ऑफ कर पाओगे विद द इनकम्स ऑफ टैक्सेबल एट 12.5% और 20%, बट उधर आप डिविडेंड पे टैक्स पे करोगे 30%। तो दैट शुड बी देयर। वो कुछ ना कुछ इनको करना चाहिए कि ये कॉस्ट आप उसको डिविडेंड ट्रीट कीजिए, मेरे को कुछ गलत नहीं लगता, बट ये कॉस्ट कहीं ना कहीं उस डिविडेंड से सेट ऑफ होनी चाहिए। राइट। असेसमेंट केसेस, अभी जैसे सर ने बताया कि गवर्नमेंट ही अपने प्रोविजंस लेके आती है और उसके बाद ही उसको रिपील करती है, एंड सेम वे इफ आई टॉक अबाउट विद द असेसमेंट, आप 1 अप्रैल 2021 से एक अमेंडमेंट्स लेके आए, आपने सेक्शन 153A 153C सर्च रिलेटेड असेसमेंट्स, उनको आपने मर्ज किया विद द इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, सेम सेक्शंस लेके आए कि भी एक ही सेम ही प्रोविजन से गवर्न होंगे सब्जेक्ट टू सम स्मॉल डिफरेंसेस इन कंडीशंस। आप उस समय ऑल टुगेदर नए सेक्शंस लेके आते हैं, सेक्शन 148, 148A, 149, 151, आप उनको ग्रेजुअली, और ग्रेजुअली में कहूंगा हर साल उनमें अमेंडमेंट्स आती हैं। नाउ दे हैव अगेन चेंज ऑल द सेक्शंस ऑल टुगेदर, फ्रेश ड्राफ्टिंग, इट्स नॉट लाइक अमेंडमेंट इन दैट पर्टिकुलर प्रोविजन। पहली बात तो सर्च की असेसमेंट को अलग ले गए, एंड वे बैक टू द एरा बिफोर 2003 और 2004, द कंसेप्ट ऑफ द ब्लॉक असेसमेंट वेयर देयर विल बी अ सिंगल ऑर्डर फॉर मल्टीपल ईयर्स, वो अलग ले गए। Now it will not be more assessed as part of section 147 assessment, और यहां पर भी ऑल टुगेदर सेक्शन 148, 148 कैपिटल ए, 149 एंड 151, चारों सेक्शंस ऑल टुगेदर फ्रेश ड्राफ्ट करके लिखे। आपने सेक्शन 147 में टाइम पीरियड बढ़ा के 6 साल से 10 साल किया था, नाउ इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 5 इयर्स। तो एक रीजन तो होने चाहिए ना, आप 6 से बढ़ा के 10 कर रहे हो, 3 साल के बाद ही आपको दिखाई देता है नहीं 10 साल ज्यादा है, रिड्यूस इट टू 5 इयर्स। अब और कुछ नहीं होना, जैसे ये पर्टिकुलर फाइनेंस बिल पास होगा, इट विल बिकम द एक्ट, तो कट ऑफ डेट आएगी 31 ऑफ अगस्त की, क्योंकि 1 सितंबर से नए प्रोविजन लग जाएंगे। तो वट एवर द ईयर्स विच आर गेटिंग टाइम बार्ड बिकॉज ऑफ दिस अमेंडमेंट ऑन 31 ऑफ अगस्त, कि 1 सितंबर को नोटिस इशू नहीं हो सकता, बट 31 अगस्त को हो सकता है। इफ यू रिमेंबर जब ये काम हुआ था बिकॉज ऑफ कोविड, जब वहां पे डेडलाइंस और साथ में 1 अप्रैल 21 की अमेंडमेंट थी, तो वहां पर ये इश्यूज आए थे। तो सेम इशू मेरे को लगता है अगस्त के अंदर स्टार्ट होगा, जहां पे डिपार्टमेंट विल ट्राई टू फाइंड आउट कि कौन से केसेस अब इस पर्टिकुलर टाइम के बाद हम इशू नहीं कर पाएंगे, तो उन सारे केसेस के अंदर नोटिस कब तक इशू कर दो, बाय 31 ऑफ अगस्त। फ्रेंड्स, दैट इज द चेंज पूरा का पूरा। इन्होंने मेरे को लगता है कि जिन कारण से लिटिगेशंस आ रहे थे उन सारी चीजों को हटाने की कोशिश की है थ्रू द लैंग्वेज। तो टाइम पीरियड भी घटा के अगर मैं देखूं तो 5 साल मैक्सिमम आप इसको कर लीजिए असेसमेंट ईयर के बाद 5.25, दैट इज 5 ईयर 3 मंथ्स। तो उसके बियॉन्ड अब पॉसिबल नहीं है। अगर आप सर्च केसेस में भी जाएंगे तो वहां पर भी अगर पीरियड देखेंगे तो दैट इज अलाइंड विद द नॉन सर्च केसेस, और वहां पर भी उस पर्टिकुलर डेट के बाद केसेस पॉसिबल नहीं है। सर्च केसेस के अंदर फ्लैट 60% टैक्स विल बी देयर फॉर द अनडिस्क्लोज इनकम। अगर आप आईटीआर के अंदर अनडिस्क्लोज इनकम खुद ही सरेंडर कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं, 60% टैक्स पे कर देते हैं, देयर विल बी नो पेनल्टी, देयर विल बी नो पेनल्टी। इवन वहां पर इंटरेस्ट भी आपका लेवी नहीं होगा।
और ITR में कोई इनकम डिस्क्लोज नहीं है एंड असेसिंग ऑफिसर फाइंड टू बी अनडिस्क्लोज इनकम, तो उस केस में 60% टैक्स प्लस अगर ITR टाइमली फाइल नहीं करी तो 1.5% पर मंथ इंटरेस्ट एंड 50% ऑफ द टैक्स एज पेनल्टी. But that will be altogether separate assessment. No set off of losses against those incomes. कोई set off नहीं होगा. विवाद से विश्वास कट ऑफ डेट इज 22 ऑफ जुलाई. अगर 22 ऑफ जुलाई का आपकी अपील पेंडिंग है विद द एपेलेट अथॉरिटीज, मे बी CIT अपील्स, मे बी इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, मे बी हाई कोर्ट, मे बी सुप्रीम कोर्ट, मे बी रिवीजन एप्लीकेशन विद द CIT, तो उस पर्टिकुलर केस में आप विवाद से विश्वास स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं. एक कट ऑफ डेट दी है 31 ऑफ दिसंबर 24, वहां तक रुपए कम पे करने हैं, उसके बाद ज्यादा पे करने हैं. अगर आप ऑलरेडी सेम फोरम पे आपकी अपील पेंडिंग है, सेम फोरम मींस कि आपकी अगर अपील 31 ऑफ जनवरी 2020, दैट वाज द स्पेसिफाइड डेट फॉर अर्लियर विवाद से विश्वास स्कीम ऑफ 2020. अगर उस दिन भी CIT अपील्स पे अपील पेंडिंग थी और आज भी CIT अपील्स पे अपील पेंडिंग है, तो उस पर्टिकुलर केस में यू कैन ऑप्ट फॉर विवाद से विश्वास स्कीम 2024 बट विद एक्स्ट्रा 10% पेमेंट. सेम फोरम पे पेंडिंग. और CIT बिल्स के केस में देखूं तो इन माय ओपिनियन द मैक्सिमम केसेस आर पेंडिंग एट द सेम फोरम. टैक्स के केस में ओनली यू हैव टू पे द टैक्स. पेनल्टी और इंटरेस्ट का अगर आपका लिटिगेशन पेंडिंग है, यू हैव टू पे 25% ऑफ सच पेनल्टी और इंटरेस्ट. अगर डिपार्टमेंट की अपील पेंडिंग है और उसमें वो मैटर डिस्प्यूटेड है, तो यू हैव टू पे हाफ ऑफ द अमाउंट. जो ऊपर कैलकुलेट करोगे उसका हाफ. बट सर्च केसेस की अपील पेंडिंग है तो उस केस में आप विवाद से विश्वास की ऑप्ट नहीं कर सकते. That is in relation to charitable trust. That is the welcome. जैसे सर ने कहा कि मोस्ट अवेटेड था कि आप 10, 23C और 12A जब मोर और लेस सेम है तो why don't you align and make a single section? Why are creating the two sections? और आप उसमें कंफ्यूजन कर रहे हो थोड़ा बहुत लैंग्वेज का डिफरेंस. Now they have merged these particular two sections with effect from 1st of October 2024. पुरानी ट्रस्ट जो ऑलरेडी 1023C में कंटिन्यू कर रही हैं, जब तक उनकी पीरियड ऑफ वैलिडिटी है तब तक वहीं पर ही कंटिन्यू करेंगे. जब रिन्यूअल आएगा तो रिन्यूअल विल बी अंडर सेक्शन 12A ओनली. आज के दिन कोई एप्लीकेशन पेंडिंग है तो वो 1023C में ही रहेगी. बट 1 अक्टूबर ऑनवर्ड जो भी एप्लीकेशन पेंडिंग होगी दैट विल बी अंडर सेक्शन 12A ओनली. और उन्होंने दोनों सेक्शंस को ऑल टुगेदर बिल्कुल अलाइन कर दिया. वो कहते हैं सेक्शन सेम रहेंगे. तो नो मोर एप्लीकेशंस अंडर सेक्शन 1023C. डिले कॉन्डोनेशन एप्लीकेशन ठीक है, उन्होंने कहा CBDT के बजाय कमिश्नर को अप्रोच कर लेना. अप्रूवल की टाइम लिमिट्स वगैरह कुछ उन्होंने चेंज करी है. दैट इज अ क्लरिकल चेंज. दीज आर द क्लरिकल चेंजेस इफ आई टॉक अबाउट. This is from my side if I talk about, and बाद में मुझे मौका नहीं मिलता. I realize that. I would like to thanks Jatin Tyagi and his team for providing this particular platform. और धन्यवाद चोपड़ा सर का कि सर ने ग्रेस करा और साथ में इनपुट्स और मेरी हेल्प करी पूरे थ्रू आउट द सेशन. एंड वुड लाइक टू हेल्प नहीं की, बस मैंने आपसे सीखा है, मैंने हेल्प नहीं किया. सर and over to thank you so Jatin. much. Yeah, thank you so much, Pankaj ji. I think it was a wonderful and enlightening session. Special thanks to Chopra sir. I think you have added a salt and sugar to our session today. I think this was very much needed. Brainstorming from a very, very different perspective, where we can openly talk about what government is doing, how they are doing, and I mean, what kind of changes it is bringing to the industry. I think this was a wonderful brainstorming session. Thank you so much. And thank you everyone for joining us today. If you have any queries, Pankaj ji is here. You can definitely ask or you can type also. I think we all have positive comments. Pankaj ji, you can see in the chat box. Yeah. So we have a wonderful session by Rajesh ji, Abhay ji, great session. So we have all the positive remarks. I think, as we saw yesterday when the budget was presented, the highlights which were presented by the government, it was just in one page or direct tax provisions. But when we have seen this session in last 1 hour, I think we saw a lot of changes which has been brought in by this Finance Act. So I think we will need more time to digest what has been prescribed. And I'm sure, Pankaj ji, people are going to bother you, going to call you for different things. Definitely. And I'm very much sure that you will be taking all their queries in a very positive manner. बिल्कुल जतिन जी, anytime they can call. In any case, if I'm in a meeting or the court litigations, definitely I call back. So sure. It will be my pleasure. Thank you so much. It was indeed a wonderful session. Thank you all for joining us today. Thank you.